students, today we are going to start a new topic for cyclic and non-cyclic photophosphorylation. So first of all, we know what is the photophosphorylation. प्रकाश फास्फोरिलीकरण क्या है? सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि फास्फोरिलीकरण में होता क्या है. द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी और एडीपी. द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड एडीपी इन क्लोरोप्लास्ट by use of sunlight energy is called photophosphorylation. Repeat again, what is the photophosphorylation? Formation of ATP or ADP by the use of sunlight energy. By the use of sunlight energy in chloroplast is called photophosphorylation. प्रकाश फास्फोरिलीकरण क्या होता है? एटीपी या एडीपी के निर्माण की प्रक्रिया प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहलाती है. इसमें सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग होता है और यह क्रिया क्लोरोप्लास्ट हरित लवक में संपन्न होती है. दोबारा सुनेंगे. पादपों के कोशिका के हरित लवक में सूर्य के प्रकाश ऊर्जा का उपयोग कर रासायनिक ऊर्जा एटीपी या एडीपी के निर्माण की प्रक्रिया प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहलाती है. इट इज ऑफ टू टाइप. Photophosphorylation is of two type: cyclic photophosphorylation and non-cyclic photophosphorylation. प्रकाश फास्फोरिलीकरण की क्रिया दो चरणों में संपन्न होती है या ये दो प्रकार की होती है: चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण और अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण. अब सबसे पहले हम जानेंगे नंबर 1 चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण. साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन वेरी सिंपल है, क्योंकि हम इन साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के साथ साथ क्या पढ़ रहे हैं? पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड. फोटो सिस्टम फर्स्ट प्रकाश तंत्र फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड प्रकाश तंत्र सेकंड. और ये अपन क्लियरली आपको समझा चुके हैं. आप वीडियो देखो या ना देखो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है. बाद में तो समझाने का टाइम कम ही मिल पाता है. तो फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फोटो सिस्टम फर्स्ट प्रकाश तंत्र फर्स्ट क्या करता है? उच्च तरंग दैर्ध्यों की प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करता है. फोटो सिस्टम फर्स्ट व्हाई द कॉल्ड फोटो सिस्टम फर्स्ट? इट एब्जॉर्ब higher wavelength of visible light, and in photosystem second this absorb shorter wavelength of light of visible spectrum. ये तो इनकी डेफिनेशन है. अब साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में सिंपल सी बात बता दूं मैं आपको. साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन आपको पढ़ना है, तो अब आप देख सकते हैं ये वही है पीएस फर्स्ट वाला. तो साइक्लिक में अपन क्या होता है? released electron, the released electron from pigment 700. released electron, with electron direction है. released electron from pigment 700. it is the reaction center of photosystem first. travel through, अब डायग्राम को देख रहे हैं ना? travel through different electron acceptor. travel through different electron acceptor like as plastocyanin, cytochrome F,
इधर से आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल these released electron is absorbed by iron sulfur protein pair. It become reduced and released electron also absorbed electron acceptor ferredoxin, and this is also reduced and released electron. Now these electron travels through various electron acceptor ferredoxin, cytochrome B6 and cytochrome F and plastocyanin, and finally these release electron which passes through different electron acceptor, it finally reaches to the pigment 700 reaction center of PS first. It means release electron from that chlorophyll molecules after travels through various electron acceptor again reaches into the same chlorophyll molecules, chloroplast molecules. So it is called cyclic photophosphorylation between two electron acceptor, cytochrome B6 and cytochrome F. This energy of released electron is used to form ADP plus ADPI form ATP, adenosine diphosphate and inorganic phosphate form adenosine triphosphate. So this is a chemical energy and release electron by the absorb of photon energy, light energy. So light energy दिख रहा है ना आपको फोटोन. So light energy is convert into chemical energy. This is called photosynthesis. But formation of ATP is the use of sunlight energy in a chloroplast is called photophosphorylation. क्लियर? तो इसको साइकिल क्यों बोला गया ये आप समझ चुके होंगे. चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में सूर्य के प्रकाश ऊर्जा में फोटोन आते हैं, ऊर्जा के पाउच होते हैं. इन फोटोन की एनर्जी ऊर्जा जब क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट हरित लवक के अभिक्रिया केंद्र पिगमेंट 700 से टकराती है तो इस ऊर्जा को पा करके इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाते हैं. क्लोरोफिल अणु उत्तेजित हो जाता है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड, और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है. अब ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों के द्वारा, ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से गुजरते हुए अंत में उसी पर्णहरित अणु को पहुंच जाते हैं, उसी हरित लवक को पहुंच जाते हैं जहां से ये उत्सर्जित हुए थे, उसी हरित लवक अणु को पहुंच जाते जहां से ये उत्सर्जित हुए थे. इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण एक चक्रीय प्रक्रम के थ्रू होता है और इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जब विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों के द्वारा ग्रहण की जाती है तो साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के बीच इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ऊर्जा का उपयोग किस में कर लिया जाता है, एटीपी के निर्माण में कर लिया जाता है. तो यहाँ पर एडीपी और आईपी, कार्बनिक फास्फेट और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट मिलकर के क्या बना रहे हैं, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण कर रहे हैं. तो इस एटीपी के निर्माण में कौन सी ऊर्जा का उपयोग हो रहा है, जो क्लोरोप्लास्ट अणु से मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन है. और ये इलेक्ट्रॉन मुक्त क्यों हो रही है, क्योंकि ये फोटोन की जो ऊर्जा है वो इससे टकरा रही है. पत्तियां जब फैली रहती है तो प्रकाश के जो एनर्जी पार्टिकल जो होते हैं फोटोन को टकराते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोला गया, चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण. क्योंकि एटीपी का निर्माण तो हुआ तो फास्फोरिलीकरण तो है, किससे हो रहा था, प्रकाश के कणों से, तो प्रकाश फास्फोरिलीकरण. चूंकि ये प्रक्रम एक चक्र के थ्रू होता है, एक चक्र आपको दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण. बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा. अब आप आ जाएंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण. तो इसमें आप देख रहे हैं एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं की ऊर्जा. तो ये जो एरो जो बन रहे हैं ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स. क्लियर. अब नाउ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन.
अब आप इसको सुनेंगे और समझेंगे। दिस फोटोफॉस्फोराइलेशन नॉन साइक्लिक, दिस फोटोफॉस्फोराइलेशन participate both PS second and PS first, participate both photosystem second and photosystem first. In this process electron ejected, in this process electron ejected from pigment 680, in this process ejected electron from pigment 680 which is the reaction center of photosystem second. Now these ejected electrons travel through various electron acceptor in a linear sequence. All of the electron acceptor in a linear, this electron is travel through various electron acceptor and its arrangement is a linear sequence. First of all, ejected electron is absorbed by pheophytin. PS फर्स्ट में कौन सा होता था? आयरन सल्फर प्रोटीन पेयर. बट इन PS सिस्टम सेकंड में ejected electron first of all absorbed या accept by electron acceptor pheophytin. तो ये जितने भी अपने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ये कहाँ हैं? ये क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं एंड इट बिकम रिड्यूस एंड रिलीज इलेक्ट्रॉन. This released electron is accepted by plastoquinone and after this cytochrome B6 or cytochrome F, both, any in both of the two, cytochrome B6 or cytochrome F. Between plastoquinone and cytochrome B6 and cytochrome F, ADP and inorganic phosphate form ADP. This electron acceptor become reduced and release electron and this electron is now accepted by plastocyanin. Plastocyanin is the connecting link between PS second and PS first. You see here, plastocyanin is the connecting link between PS second and PS first and this release electron from plastocyanin is reaches into the reaction center P700 of photosystem first. अब आप सोच रहे हो यहाँ ये फोटोन यहाँ स्टक नहीं होगा क्योंकि ये वो वाला PS फर्स्ट नहीं है, ये PS फर्स्ट तो है बट here PS first is already released its electron from its chloroplast molecules. यहाँ पर PS फर्स्ट प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट उस कंडीशन में करेगा जब ये ऑलरेडी अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर चुका होगा. आप देखो ये चीज अलग है, यहाँ पर FT आ रहा है, इसके बाद ये NADPH का फॉर्मेशन हो रहा है. एक तो क्लियर. सो दिस इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन. रिलीज इलेक्ट्रॉन PS सेकंड फ्रॉम a chloroplast molecule is not reaches, is not come back, not return to same molecules, but it reaches to the another chloroplast molecules in PS first. So this is called non-cyclic photophosphorylation, in which hydrolysis of water molecules, in which hydrolysis of water molecules use of the photon energy and breakdown into half molecules of oxygen and 2H positive ion. Oxygen is released into the environment and this 2H positive ion are used to the NADP, nicotinamide adenosine dinucleotide phosphate. It is the electron acceptor of PS first and form NADPH plus H positive ion. NADP is oxidized and NADP is reduced, yani reduced NADPH plus H positive ion. This is the reduction process in which hydrogen ion is added with the NADP and form NADPH plus H positive ion. It is reducing power, sorry, it is assimilatory power. यहाँ पर ये कौन सी होती है? एसिमिलेटरी पावर. एंड एटीपी जो होती है, एटीपी को बोलते हैं अपन
reducing power. ATP is the reducing power and NADPH is the assimilatory power. These ATP and NADPH plus H positive ion are used in the released electron reduction of carbon dioxide in a dark reaction. Repeat again. In this process, ATP is called assimilatory. ATP is called assimilatory. Sorry. ATP is called assimilatory power and NADPH plus H positive ion is called reducing power. NADPH is called correct reducing power. Thus formed ATP NADPH पॉजिटिव आयन इन लाइट रिएक्शन. तो ये क्या है, बोथ PS फर्स्ट एंड PS सेकंड लाइट रिएक्शन है. तो लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH दोनों का क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है. तो एक तो हो गया अपना रिड्यूसिंग पावर का और दूसरा किसका हो गया, एसिमिलेटरी पावर का. रिड्यूसिंग पावर और एसिमिलेटरी पावर. दीज बोथ एनर्जी इज यूज्ड फॉर रिडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑफ CO2. Carbohydrate of CO2 in a dark reaction. Reduction of carbohydrate of carbon dioxide in a dark reaction. तो अब मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को समझाऊंगा कि ये सारा मैंने इंग्लिश में टोटली बोला, हिंदी बिल्कुल नहीं बोला. अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण को क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रकाश तंत्र सेकंड और प्रकाश तंत्र फर्स्ट दोनों का उपयोग होता है. आप देखो प्रकाश तंत्र सेकंड और प्रकाश तंत्र फर्स्ट. प्रकाश तंत्र सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, जब फोटोन प्रकाश ऊर्जा के जो कण होते हैं क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल से टकराते हैं अणु से, तो उत्तेजित हो जाता है. तो जब ये क्लोरोप्लास्ट जो अणु उत्तेजित हो जाता है क्लोरोफिल, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं. इसमें जो अक्रिया केंद्र है वो कौन सा है, पिगमेंट 680, यानी ये निम्न तरंग दैर्ध्य वाली ऊर्जा का अवशोषण करते हैं. अब इलेक्ट्रॉन जब उत्सर्जित होते हैं तो विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों के द्वारा एक रैखिक क्रम में इन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है. तो प्रकाश तंत्र सेकंड में इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन कौन से हैं, सबसे पहले उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को थियोफाइटिन ग्रहण करता है, उसके बाद प्लास्टोक्विनोन ग्रहण करता है, और ये सब अपचित होते चले जाते हैं. अपचित होकर के इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करते रहते हैं. फिर ये साइटोक्रोम B6 या साइटोक्रोम F इनको ग्रहण कर लेता है. लेकिन प्लास्टोक्विनोन और साइटोक्रोम F6 के मध्य इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का उपयोग ATP के निर्माण में कर लिया जाता है. तो ATP का निर्माण किससे होता है, ADP प्लस कार्बनिक फास्फेट मिलकर के ATP का निर्माण करते हैं. तो इस ATP को क्या बोला जाता है, स्वांगीकारी, एसिमिलेटरी पावर, स्वांगीकारी शक्ति. फिर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण प्लास्टोसाइनिन को हो जाता है. अब प्लास्टोसाइनिन क्या है, प्रकाश तंत्र सेकंड और प्रकाश तंत्र फर्स्ट को आपस में जोड़ता है. प्रकाश तंत्र फर्स्ट और प्रकाश तंत्र सेकंड के मध्य की योजक कड़ी प्लास्टोसाइनिन को कहा जाता है. अब प्लास्टोसाइनिन जब अपचित हो जाता है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाते हैं, प्रकाश तंत्र फर्स्ट को. लेकिन प्रकाश तंत्र फर्स्ट इस इलेक्ट्रॉन को उस कंडीशन में ग्रहण करेगा जब वो अपने इलेक्ट्रॉन को पहले ही क्या करेगा, उत्सर्जित कर चुका होगा, तब इन इलेक्ट्रॉनों को ये ग्रहण करेगा. चूंकि इस प्रकाश तंत्र सेकंड का मतलब है अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में जिस पर्णहरित अणु या हरितलवक के अणु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं वो विभिन्न ग्राहियों से होते हुए वापस उसी पर्णहरित अणु को, उसी हरितलवक अणु को नहीं पहुंचते, बल्कि प्रकाश तंत्र फर्स्ट यानी किसी दूसरे हरितलवक के अणु को चले जाते. तो चक्र पूरा नहीं होता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण. अब इस प्रकाश तंत्र सेकंड में जब इसमें यूज होता है तो यहाँ जो फोटोन की जो ऊर्जा है, उस फोटोन की ऊर्जा से जल के अणुओं का, जल के एक अणु का क्या होता है, प्रकाशिक जल अपघटन, प्रकाशिक अपघटन होता है, फोटोलाइसिस होता है. तो आधा अणु ऑक्सीजन का जो भी है, हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन मुक्त होती है और 2H पॉजिटिव आयन मुक्त होते हैं, ये तो वातावरण में चली जाती है. अब ये 2H जो धन आयन है, 2H जो धन आयन है, इसका उपयोग PS फर्स्ट के हरितलवक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ग्राही NADP, देख रहे हैं ना अपन HS जा रहा है, NADP निकोटीनेमाइड एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है
और ये अपचयित हो जाता। अपचयित होकर के क्या बनाता है, NADPH प्लस H पॉजिटिव आयन। इसको यहाँ क्योंकि अपचयन होता है तो क्या बोलेंगे, अपचयनकारी शक्ति। ये क्या है, स्वांगीकारी शक्ति। तो अब हम दोनों में क्या देखते हैं, जो प्रकाश तंत्र है यानी प्रकाशिक जो अभिक्रिया है PS फर्स्ट और PS सेकंड, चक्रीय और अचक्रीय, इसमें एक तो ATP का निर्माण होता है और दूसरे NADPH प्लस H पॉजिटिव का निर्माण होता है। तो दो प्रकार की शक्तियों ऊर्जा का निर्माण होता है। इन दोनों प्रकाशिक अभिक्रियाओं में उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग अप्रकाशिक अभिक्रियाओं में कार्बोहाइड्रेट के अपचयन में CO2 का जब रिडक्शन होता है, कार्बोहाइड्रेट ऑफ CO2 इन डार्क रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन का होता है और अपचयन होकर के उसका निर्माण कार्बोहाइड्रेट बनाने में कर लिया जाता है। तो ये अप्रकाशिक अभिक्रिया में काम आती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है, तो डायग्राम से इतना इजी हो जाता है कि इसको आसानी से समझा जा सकता है और तभी समझ में आएगा जब आप इस पूरे प्रोसेस को, डायग्राम को बनाएंगे और समझेंगे। नाम आप हिंदी में लिख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट, अदरवाइज ऐसा कोई दिक्कत इसमें बात नहीं है। और कम से कम एक नहीं दो बार आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में आने वाला नहीं है। ये दो चैप्टर है अपने, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, थोड़े से टिपिकल है बट मोर इंटरेस्टिंग। टिपिकल है लेकिन जो चीज कठिन होती है उसको समझने में उतना ही ज्यादा आनंद भी आता है। तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे जैसा मैं समझता हूँ। अगर प्रॉब्लम हो तो क्लास में डिस्कस कर लेना। ओके, थैंक यू।